financial benefit that you are getting out of your parcel of land defines its function. And that means spaces such as public spaces are not finding that priority within our urban design. And this is very important for Karachi also. So this is a definition of public spaces that I brought out from a book that I will be sharing with you later also. It's I think it's an important book for you to look into if you're interested in public space design. And if you look at it, then it is identifying the different, the expanded horizon of public spaces. And it's looking into streets and pedestrian access, open and green spaces, which may include water bodies, waterfronts, and public facilities like libraries, community centers, municipal markets. So public space capital can range from informal street corners to global, to plazas and landmarks that are, the high points within the city. And the global experience has shown that how these varied types of public spaces can directly contribute to cities' functionalities, including social interactions, urban health, labor market, urban environment, everything. So एक चीज जो मेरे students जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, they would know कि I always talk about the 3 E's of sustainability: equity, environment, and economics. And when we talk about sustainability and when we connect the sustainability with public space, so a public space needs to have all these three, needs to create all these three interfaces, where it is leading to economic prosperity within the city, it is leading to improved environment, and it is also leading to creating that inclusivity and social capital. So this is, I'll quickly go through it. This is the place diagram, which is in placemaking terms where we're identifying some main attributes of a good public space: sociability, uses and activities, comfort and image, access and linkages. And going into a bit into this theory because the Karachi Neighborhood Improvement Project has sourced from these kind of, understandings and theories of trying to, bring those kind of, attributes within the public space design that has happened so far and is planned for the future. Where multiple, and I'll explain this a bit later in the slide. Now, this is an important slide, which again brings out those multiple dimensions of a good public space, which can be economic, which can be environmental, which can be social. Okay, you are promoting a sense of comfort, which is related with the design of spaces. How you have places to sit, you have places to walk, you have shade and heat, and multiple other comforts that come within a space. It is creating improved accessibility because ideally good public spaces need to be accessible to everyone, on foot, on cycle, on public transit, on car. And it builds and supports the local economy because how a good public space design can create that kind of a larger improvement in the economy of space. And I'll explain it with a few examples later on. Promotes health, better health. And I'll be talking about it in my classes also. I discuss it often, the walkability plan of London, the transportation strategy plan of London, where, when we are talking about good streets, then we are relating it with good health, healthy city, healthy streets. So, when you're designing public spaces, it needs to have that health vector associated with it. A sense of community, where people find ownership, people come together, people bond together, and of course, social interaction. So these are some of the, again, key attributes of a public space. And what I'm trying to bring out in this discussion is that you need to have that larger understanding when you're thinking about public spaces. कि वो क्या benefits हैं that are coming out of it, which can have a large range. And unless a public space, brings out that larger, dynamics associated with it, you are, not really benefiting as much as you can. You're not optimizing the benefits of good public space design. Increasing the stage, creating ownership. And there's not enough time here today to go into the details of that, but when we are designing the public spaces of now, so it's planning. It's not top-heavy planning. It's not top-down planning. जैसे हमारे यहाँ होती है, वो बागे कासिम बन गया, वो बागे बेनज़ीर भुट्टो बन गया, बेनज़ीर भुट्टो पार्क बन गया. Nobody has been consulted, and they are barren spaces. Nobody goes there. So when we are talking about good public space design, so the demand for it needs to come from the community. The community has to be involved right from the very beginning, from the conceptualization to the management of those spaces. And in order to ensure sustainability of a good public space, you need to increase the stakes. उसमें
वहाँ के लोकल काउंसलर का क्या बेनिफिट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का कोई बेनिफिट हो सकता है, नहीं हो सकता, कोई एनजीओ का बेनिफिट हो सकता है, कम्युनिटी का क्या बेनिफिट हो रहा है, मे बी एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लाइक आईवीएस कैन हैव अ रोल टू प्ले, परफॉर्मिंग आर्ट का कोई इंस्टीट्यूशन है. So related to that public space, how many stakes can you put into it, so that there is greater chance of those spaces, being sustained in the long run, and in fact getting better over a period of time. And then in placemaking, power of 10 is very important. And this is related with that quote that I started off with. We talked about multiplier, how you create a multiplier effect within a city when you are working with different types of typologies and of types of public spaces. For example, when we talk about the power of 10, which is kind of the defining motto and slogan of projects for public spaces and public space design placemaking methodology, then you are thinking of a city which has 10 major destinations. For example, in the case of Karachi, downtown could be a destination, waterfront could be a destination. Then within each destination, you need to have 10 places. For example, in downtown, there need to be 10 different places where you can go. And for example, within the downtown, let's say you have Empress Market or you have Denso Hall, then there should be 10 different things to do there. So अब क्या हो रहा है कि एक तो ये है कि आप spread बढ़ा रहे हो in terms of the types of public spaces that are there. For example, 10 places in a destination, it could be a street. One place could be a street. One place could be a museum. One place could be a park. One place could be a square. So you're talking about these different types of public spaces that exist within a single destination. So फिर क्या है कि a good park will be connected to a good street. A good street will be connected to a good public building maybe. And here what is important? 10 things to do in one particular place. And why we are talking about this number, 10 number here, is so that you can attract different types of people. There will be something to do for the family. There's something to do there for the elderly. There's something to do there for the kids. Different profile of people are coming and finding that kind of a attraction associated with that particular space. So not enough time to go into the detail of this, but this is how you create that kind of a multiplier effect. And this is how you create multiple layers of interest for different profile of people that can come to that place and make it successful. Very important is that such spaces are now being continuously monitored. अगर आप public space design को बना के छोड़ नहीं देते, एक पार्क अगर आप डिजाइन करोगे, एक स्ट्रीट को डिजाइन करोगे, तो फिर you have to continuously monitor it कि वहाँ जो desired benefits थे वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. कुछ मैं radar diagrams यहाँ पे लेके आया हूँ कि for example कौन से different आप parameters के against एक good public space को check कर सकते हो. For example safety है, security है, accessibility है, of course इसके सब sectors होते हैं. वहाँ पे कोई accidents तो नहीं हो रहा है, कोई anti social behavior तो नहीं हो रहा है, डिसेबिलिटी फ्रेंडली है या नहीं है. फॉर एग्जांपल अब हम जब पब्लिक स्पेस डिजाइन की बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूनिवर्सल एक्सेस डिजाइन शुड बी देयर. पीपल शुड स्पेसेस शुड बी एक्सेसिबल फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स. इफ दे आर फिजिकली चैलेंज्ड ऑन अ व्हीलचेयर, इफ दे आर विजुअली impaired, can't see, so is your place disability friendly? Are there enough facilities there for people to find comfort? Noise factor तो नहीं है. Youth friendly है या नहीं है, senior friendly है या नहीं है. As I was saying, multiple profile of people need to find something to do there. Multifunctional है, different type of activities are there or not, या फिर ये वही है जैसे हमारा बाग कासिम है, nothing to do, one large parcel of land जहाँ पे कुछ भी नहीं है, and wheelchair access है नहीं है, user specific streets तो नहीं है, but are they inclusive streets, और ये है कि आपने उनको exclusionary कर दिया है. So again you consider when you have a public space, ये सारे parameters different type of public spaces पे apply कर सकते हैं. They can apply to a street, they can apply to a park, they can apply to a waterfront area. So ये जो किताब में मैंने मेंशन किया था, The Hidden Wealth of Cities, एंड में मैं उसका डाउनलोड लिंक वगैरह भी तुमसे शेयर कर लूँगा. तो उसमें से ये मैंने कुछ यहाँ पे सोर्स किया है, एंड यू कैन सी के वही वाली बात कि जहाँ मैंने कहा कि अब when we are talking about public spaces, तो आप जब उनको उनके benefits को measure करते हो based on the indicators for measuring those, for measurement that you have created, तो फिर you will see कि you are measuring social benefits also, you are measuring economic benefits also, you are measuring environmental benefits also. जैसे यहाँ पे you will see कि यहाँ पे इन्होंने
सेटिस्फेक्शन रेट लोगों का आइडेंटिफाई किया है, हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, वहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर किस तरह उसकी वजह से डेवलप हुआ, नई बिजनेसेस वहाँ पे क्रिएट हुए, फॉर एग्जांपल नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, फिर उसके बाद उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट हुआ. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट. इट्स नॉट जस्ट द पब्लिक स्पेस यू आर डिजाइनिंग, बट उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इंप्रूवमेंट है. So when you're looking at these kind of factors, so you will find that those economic elements are also there, those environmental elements are also there, and those social elements are also there. And in many cases, they were finding interfaces with each other. And this is another slide which kind of looks into what kind of questions you need to ask when you are designing a public space and what kind of a process you can follow. For example, who are the actors and how are they involved? सबसे पहली चीज ये है कि when you are thinking of designing a good public space, transforming a public space, enhancing a public space condition, or creating a new kind of a public space, कोई भी ऑप्शन के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो कौन से क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जिनको आप इंगेज कर सकते हैं और उनके स्टेक्स उसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं. So that is very important right from the very birth. What public space assets does a city own? जैसे कराची के केस में हमारे पास पोटेंशियल क्या है, हम कौन सी नए पोटेंशियल्स डेवलप कर सकते हैं. कराची इज अ कोस्टल सिटी, सो यू हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस ऑन द कोस्ट. कराची के पास हिल्स भी हैं, सो यू नो दोज आर critical areas where you can look into. Here, not just the physical features, but other features also that relate with it. Implementation की approaches क्या होंगी? You know, how are you going to go about doing this process? And that, of course, relates to the conditions that exist in a particular space. Governance का structure क्या है? कौन से government departments क्या role play कर रहे हैं? किसकी jurisdiction कहाँ पे आती है? किसका role आप किस तरह identify कर सकते हैं? And how you connect your intervention within a larger vision if it exists within the city. How can public spaces be funded? You know, जाहिर है कि उनकी sustainability को आप किस तरह देख रहे हो. Management, for example, उनकी अगर हो रही है तो how it can be sustained over the long run. Can you create public-private partnerships, for example, community-public partnerships that are very important and always are recommended, which comes here. Sustainable management is very important. बना के भूल नहीं जाए. जैसे एक तरीका ये हो सकता है, ये बहुत से हैं, बुक में तुम्हें मिल जाएंगे, मैं एंड में तुमसे वो शेयर कर लूँगा, ज़ाहिर है अभी इतना टाइम नहीं है. कि फॉर एग्जांपल एक तरीका ये हो सकता है आप इन्हांस कर रहे हैं पब्लिक किसी स्पेस को. एक तरीका ये है कि आप टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यूज को. जैसे ये है एक केस पेरू का और लीमा का. यहाँ पे पहले जो है ये एरिया जो था वो एक पार्किंग एरिया था, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्लाजा में. तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का एरिया है. कहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप tactical urbanism apply कर सकते हैं, which is more ephemeral, which is more short term and temporary, but it can have a role within a larger space and it keeps changing. For example, many cases, streets के cases में whatever is happening keeps changing, dynamics change होता रहता है. मैं just for example class में अपने टाइम स्क्वायर का मेंशन करता हूँ, सुबह कुछ हो रहा है, रात में कुछ हो रहा है, अगले दिन कुछ और हो रहा है. So that is where tactical urbanism can come in. So what kind of approaches you can use in public space design? फिर ये है फॉर एग्जांपल, ये भी इंटरेस्टिंग है. जैसे मैंने बार्सिलोना के सुपर ब्लॉक्स का तुमने सुना होगा, बहुत मशहूर है, कि जहाँ पे उन्होंने अपने नेबरहुड जो ब्लॉक्स थे उनमें थ्रू ट्रैफिक को बंद कर दिया. जब थ्रू ट्रैफिक को उन्होंने बंद कर दिया तो यू फाइंड कि सडनली गाड़ियाँ वहाँ से गायब होना शुरू हुई और जगह निकलनी शुरू हुई. एंड दोज स्पेसेस वर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक स्पेसेस. सो अगेन इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक. प्लानिंग अब बहुत स्ट्रेटेजिक हो चुकी है. मास्टर प्लान नहीं बनते हैं, अब आप नेबरहुड स्केल पे प्लानिंग करते हैं. हर जगह डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच कैन बी अप्लाइड. Different kind of strategies can be applied, different kind of stakeholders can come in. It depends on the typology of the space, it depends on the type of people that inhabit those space. You know, core criteria आप same रखेंगे, but strategies can change. So this is another one that I brought out for today's class. So let's come to Karachi now. जो अब तक का मेरा discussion था, which was the first part, वो उसका अगर मैं बहुत quickly sum up करूँ, so वो ये है कि this larger understanding of public space design. One, to look at, so just for example streets. एक ज़माने में streets public spaces, vibrant public spaces हुआ करती थी, लेकिन फिर उन streets को गाड़ियों ने ले लिया, उस जगह गाड़ियों ने encroach कर लिया. तुम लोगों ने जेन जेकब का काम भी पढ़ा होगा. When suddenly you know those streets and those spaces of those neighborhoods which used to be gathering spaces for people in community were taken over by cars and the related infrastructure उधर गायब हो गया. नेबरहुड्स ह्यूमन स्केल के बजाय जो है वो एक बड़े स्केल पे बनना शुरू हो गए. जैसे आप BHA है,
इट्स नॉट ऑन ह्यूमन स्केल। जब ह्यूमन स्केल पे नहीं बनेंगे तो ह्यूमंस कहाँ पे होंगे? सो एक तो ये है कि that understanding now is changing. We are trying to bring back people on the street. We are trying to create those kind of spaces where you can have that kind of a dynamics and psyche of space being revived again. ठीक है? So और उसके अंदर फिर हम different typologies of spaces को देख रहे हैं. When we are looking into not just the environmental benefit or recreational benefit, we are looking into economic benefit, we are looking into social benefits, which will be much easier to sustain those spaces and justify investment in public space design. कि उससे सिर्फ आप ये नहीं है कि लोगों के खेलने कूदने के लिए जगह कर रहे हैं, बस इकोनॉमी को शहर में फायदा हो रहा है। एट टाइम्स पॉलिसी मेकर्स को आपको जब कन्विंस करना होगा कि ये चीजें लानी होंगी, सो दैट इज देयर नाउ, दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, and then those spaces can lead to creating much more bonded and socially inclusive spaces, which is a very important consideration now as cities get more and more fragmented and segregated. और जैसे हमारे केस में कराची में so much fragmentation upon socio-economic lines, religious lines, ethnic lines, जितनी भी आप ले लें, so again that bonding is very important. अच्छा, कराची के केस में ये जो है वो उसी बुक से है, वेल्थ हमने जो रिसेंटली प्राइमरी डेटा जो जमा किया था और थोड़ा सा उसमें किया था, तो ये कराची का पूरा पब्लिक स्पेस का एक जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर ये इसकी वो है क्या कहते हैं लेजेंड है, एंड यू कैन सी कि क्या क्या है एंड हाउ विजिबल इट इज राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कितना स्प्रेड है हमारा पब्लिक स्पेसेस का, एंड मगर पोटेंशियल काफ़ी है। जैसे वही उसको भी हम देखें, ये कराची है, तो इफ यू विल सी के ये जो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये वाला जो बार का शेड है, इसको अगर तुम यहाँ देखो तो पोटेंशियल स्पेसेस, अदर पोटेंशियल स्पेसेस कैन बी बिल्ड, सो देयर इज पोटेंशियल अवेलेबल, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, एंड नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन आई डिस्कस दैट। अच्छा, ये कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट इज फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, and it is part of a larger intervention of the World Bank, which is called Karachi Transformation Strategy Project, and there are 4 components to it. ये Karachi Neighborhood Improvement Project है, it is to do with public space design, but उसके साथ साथ you also have the CLIck project, which is looking into infrastructure development, solid waste management, for example. Then you have the project that is looking into transportation, yellow line के ऊपर fund करेंगे इसको, and then there is the Karachi Water Sector Improvement Project, KWSSIP. So there are 4 separate interventions that are taking place of the World Bank. KNIP, from which it all started, Karachi Neighborhood Improvement Project, is a very unique experiment, particularly in the case of a country like Karachi, क्योंकि जब भी हम World Bank funding की बात करते हैं तो हम हमारे जहन में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट है, वो डैम बन रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वर्ल्ड बैंक इन्वेस्टेड in leveraging public spaces as a means to improve the overall livability within the city. This is the first experiment that has taken place in Pakistan, and very few of those in other parts of the world also. The World Bank was very excited about this. For the first time, they are looking into investing in public spaces and how they can become the triggers to overall urban improved livability. अच्छा, इसमें हमसे रिलेटेड ये वाला है, इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी कुछ काम हो रहा है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एंड ऑल दैट, बट इनहांस पब्लिक स्पेसेस इन टारगेटेड नेबरहुड्स, पब्लिक स्पेस एंड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट इन सेलेक्टेड नेबरहुड्स. तो ये जो है वो बेसिकली मेन हमारा फोकस है आज के डिस्कशन का. एलाइड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, DMCs की, KMCs की और इदारों की, सो दैट ऑफ कोर्स फाइंड्स अ रोल इन दिस. बट आज जो हमारे डिस्कशन के लिए इसका किनिप का ये वाले पार्ट्स हैं, हाउ यू आर क्रिएटिंग मोर लिवेबल नेबरहुड्स थ्रू पब्लिक स्पेस डिजाइन इंटरवेंशन, उससे रिलेटेड मोबिलिटी इंप्रूवमेंट्स हम कैसे ले रहे हैं. तो ये 4 साल का प्रोजेक्ट है अभी, इट कैन बी एक्सटेंडेड. सो इसका पहला फेज खत्म हो गया है और दूसरा फेज अब इज किकिंग ऑफ. सो आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम. अच्छा, 3 एरियाज आइडेंटिफाई हुए थे पहले फेज में इंटरवेंशन के लिए. वन इज द डाउनटाउन एरिया, सदर का एरिया जो है उससे अलाइड एरियाज में. दूसरा मलीन, एंड द थर्ड वाज कुरंगी विद मेन इंटरवेंशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन इब्राहिम हैदरी.
Now, when we talk about the downtown area, so the area that got selected for the first intervention, in fact, I selected this area. जो हमारे डिस्कशन में, क्योंकि हमारे पास 4-5 ऑप्शन थे, सो ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट किया. एंड इफ यू कैन सी के मैं अगली स्लाइड में और एक्सप्लेन कर लूँगा कि इसके अंदर मैं ये बता देता हूँ कि इसमें हमारा काम क्या क्या था. फॉर एग्जांपल, रिवाइटलाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन एंड आर्ट्स काउंसिल. उसके बाद एम आर कियानी रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, आर्ट्स काउंसिल का काम था, पूरा स्ट्रीट डिजाइन का काम था. फिर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन दैट टुक प्लेस, वो 2 लेवल की अंडरग्राउंड पार्किंग हुई है जिसके अंदर 400 गाड़ियों खड़ी होने की जगह है, सो दैट वी कैन क्रिएट दैट स्पेस में. जो पहले गाड़ियां होती हैं सड़कों पे, अब वो नीचे चली जाएंगी. उसके बाद ये अर्बन स्पेसेस, स्टूडेंट पियासा, ये मैं भी बताता हूँ तुम्हें. और फिर 2 रोड्स के और डिज़ाइन है. ये वाले से तुम्हें बेहतर समझ में आएगा. ये जो ट्राइंगल है कि यहाँ पे ये आर्ट्स काउंसिल है, और फिर उसके बाद ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एंड पॉइंट ये पाकिस्तान चौक है. और ये जो एक यहाँ पे तुम्हें ब्लू रंग में जो एक पैच नजर आ रहा है, ये जो है वो कमाल अतातुर्क रोड है, विच हैज टर्न नाउ इनटू द पीपल्स स्क्वायर, विच इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन कराची इन क्रिएटिंग अ पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, पेडेस्ट्रियन डिस्ट्रिक्ट. अब इसमें हुआ क्या है कि एक तो जैसे मैंने कहा ये हुआ है पेडेस्ट्रियन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डिजाइन हुई है पीपल्स स्क्वायर, विच इज काइंड ऑफ द फ्लैगशिप ऑफ दिस होल इंटरवेंशन. उसके साथ साथ ये सारी स्ट्रीट्स के ऊपर भी काम हुआ है. स्ट्रीट्स का सारा काम हुआ है, बेंचेस लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर पे उसके ऊपर काम हुआ है, ट्रीज की प्लांटेशन हुई है. आर्ट्स काउंसिल में मेजर काम जो इस वक्त रिसेंटली हुआ है सारा बैंक के इस फंडिंग के में ही हुआ है. जैसे ये फॉर एग्जांपल कुछ तस्वीरें पीपल स्क्वायर की. ये पहले डबल रोड थी, आगे जाके सेक्रेटेरिएट आ जाता है. तो इस डबल रोड को हमने सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमें इसमें नज़र आया कि इसको हम इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. और फिर उसके बाद इसी में नीचे जो है वो 2 लेवल की पार्किंग है. और ये जैसे मैंने कहा ये 2 लेवल की पार्किंग है. इसके अंदर सेक्रेटेरिएट की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, प्लस और जो विजिटर्स यहाँ पे आएंगे उनके लिए अलग है. जो 200 गाड़ियाँ सेक्रेटेरिएट की हैं, 200 गाड़ियाँ विजिटर्स की हैं, प्लस मोटरसाइकिल वगैरह का है. एंड देन ये कुछ इंटरवेंशन हुई है इन टर्म्स ऑफ पेवमेंट का, क्योंकि दीज आर द वॉकिंग, दे नीड टू बी द वॉकिंग स्पेसेस. तो पेवमेंट डिजाइन है, ये ट्रीज की प्लांटेशन है एंड एवरीथिंग. ये बेंचेस हैं, गार्बेज कैन, ये सारी सड़क दोबारा से बनी है. ये बेसिकली आर्ट्स काउंसिल के सामने वाली जो सड़क नहीं है, तो ये वाला एरिया है. तो दिस इज बेसिकली आर्ट्स. अगर यहाँ से तुम आगे जाओ तो आर्ट्स काउंसिल पहुँच जाओगे आप. सो ये काम है. फिर ये सारा काम, एंड वन गुड थिंग दैट इज रियली हैपेंड वो ये है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जो काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वेयर एवर इंटरवेंशन इज टेकिंग प्लेस, वो जो एक हिडियस किस्म के आपको सारे वो वायर्स और केबल्स हर जगह नजर आते हैं, दे आर गोइंग अंडरग्राउंड. बिकॉज आप स्पेस को कैसे इंप्रूव करोगे वेयर एस्थेटिक इतना बड़ा एक उसके साथ प्रॉब्लम है कि हर तरफ तार लटक रहे हैं. सो वन थिंग दैट वी आर डूइंग इज कि जितने भी केबल्स हैं उनको, और इसमें बहुत टाइम लगा, अंडरग्राउंड गए हैं सारे. अच्छा, ये बेसिकली ओरिजिनल डिज़ाइन था, बाद में ये चेंज हुआ उसका पीपल स्क्वायर का. इसके अंदर जो है वो यहाँ पे ये बंस गार्डन है पीछे, और ये एसएम लॉ कॉलेज है यहाँ पे. तो ये इस तरह अब ये बेसिकली अब इसकी फाइनल शेप आई है. इसके अंदर ये तो पार्किंग का है, एंट्री पार्किंग, सब लेवल की पार्किंग है. यहाँ पे ये जो है ये फूड कियोस्क्स हैं जो कि अब आउटसोर्स हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर को, कंपनी को. तो आई थिंक दे विल बी ओपन सून. उसके बाद ये सारी वॉकिंग स्पेस है एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट. Say this is another picture of the people square and all that. अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और ट्राई कर रहे हैं, होपफुली इट विल वर्क आउट, और वो कहलाती है ट्रायंगुलेशन. फॉर एग्जांपल पीछे तुम्हें क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज, कैन एनीवन गेस ये पीछे क्या है, ये पार्क कौन सा है और ये बिल्डिंग कौन सी नजर आ रही है पीछे? एनीवन? Someone has said National Museum. This is the National Museum and this is the Bunce Garden, which is a heritage site. So what we are thinking of is कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता बंस गार्डन में, यहाँ पे कोई नहीं आता नेशनल म्यूजियम में. Maybe people start coming here, तो ट्रायंगुलेशन यही होता है कि कोई एक जगह है जहाँ पे आपको लग रहा है कि वैसे इतनी अट्रैक्शन नहीं क्रिएट हो रही है, बट यू क्रिएट अनदर स्पेस अराउंड इट, कि उसमें लोग आएंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे. सो अब इसमें सिंध गवर्नमेंट अलग से वर्ल्ड बैंक के पैसों में नहीं हो रहा, क्योंकि हेरिटेज साइट में हम नहीं जा रहे थे इस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में. So that's why we couldn't go in there. But Sindh government अपने own पे अब जो है बंस गार्डन को करेगी. So this can become a larger district, not just this People Square thing, but it can connect with the National Museum and with the Bunce Garden.
और ये फिर आर्ट्स काउंसिल में जितना भी अब रिसेंटली सारा काम हुआ है वो इसी में हुआ है। सो बिकॉज वी कंसिडर कि आर्ट्स काउंसिल ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली अ पब्लिक स्पेस, बट स्टिल उसमें बहुत से पब्लिक स्पेस के एलिमेंट्स हैं और कुछ ना कुछ वहाँ होता ही रहता है। सो ये है कि वी इन्वेस्टेड देयर ऑल्सो। पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली आई डोंट नो तुम में से कोई गया नहीं गया वहाँ पे, अभी डांस का प्रोग्राम भी हुआ था, वो जो आउटडोर उनका एम्पी थिएटर है उसको भी सारा किया गया है, ठीक है ना। सो नॉट जस्ट दीज इंडोर स्पेसेस। अच्छा, उसके बाद एक जो इंटरवेंशन हुआ वो अदर देन द डाउनटाउन एरिया वो कुरंगी में हुआ। तो एक तो पूरी कोस्ट गार्ड चौरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी तक की डबल वे जो कैरेज वे है वो पूरी रोड बनी है और उसका पब्लिक स्पेस डिजाइन हुआ है। राउंड अबाउट हैज बीन टर्न इनटू अ पब्लिक स्पेस, बहुत बड़ा कोस्ट गार्ड चौरंगी जो राउंड अबाउट होता था, इट हैज बीन टर्न इनटू अ, मुझे सॉरी उसकी तस्वीरें नहीं मिल सकी, मगर ये कि वो आई विल शेयर विद यू लेटर। तो वो पूरा जो है वो पब्लिक स्पेस डिजाइन हुआ है। फिर ये रोड जो फिर काफ़ी काम जो हुआ है वो इब्राहिम हैदरी के अंदर हुआ है और वहाँ पे कम्युनिटी को इंगेज किया। ये सारा काम कम्युनिटी ने खुद किया, ये पेंटिंग के जो सारा काम हुआ है, फेसलिफ्ट हुई है उनके एरियाज की, जो इम्प्रूव डिजाइन हुआ है सारा वहाँ का। तो ये नेबरहुड लेवल पे इब्राहिम हैदरी में ये सारा कम्युनिटी ने किया। अब फेज टू, ये फेज टू थोड़ा सा इसमें हमने 3 जगह मैंने जैसे किया था। मलिर का काम अभी टोटल कंप्लीट नहीं हुआ है। वहाँ पे मलिर पे इफ़ यू नो द एरिया, तो ये जो है वो थट्टो नाले तक का जो एरिया है वहाँ पे तक हमने इस सड़क पे काम किया है और उसमें एक लीनियर पार्क भी डिज़ाइन हुआ है, उसका काफ़ी काम मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। सो एक कुरंगी में हमने किया और फिर ये डाउनटाउन एरिया जो कि फेज टू इज़ मच मोर एम्बिशियस और जो अभी किक स्टार्ट हो रहा है। फेज टू में एक तो जो एरिया है मलिर के अंदर ही और काम हो रहा है, मैं अभी बताता हूँ उसका। आई जस्ट हैव 10-12 और स्लाइड्स हैं, क्विकली कंक्लूड। उसके बाद ये जो है वो सदर में और काम डाउनटाउन में हो रहा है, फिर कुरंगी में। वही 3 एरिया है, मलिर, कुरंगी और सदर। इसी के अंदर अब 22 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। ये जो पहले फेज में तो बहुत कम थे हमारे, 3-4 एरियाज में हमने काम किया था। सेकंड फेज में दे आर 22 इंटरवेंशन एरियाज वेयर वी बी गोइंग इनटू। और ये वो एरिया है जैसे ये फेज वन था, ये जो तुम्हें ट्राइंगल नजर आ रहा है यहाँ पे ना, ये ये जो ब्लू में है और जो येलो में है ये डाउनटाउन एरिया में फर्दर एरिया, ये सराय क्वार्टर का एरिया है जहाँ पे काम होगा। और ये हेल्थ एनक्लेव है, ये सिविल हॉस्पिटल और उसके आसपास का निश्चित रोड वगैरह तक जाता हुआ जो एरिया है ना। सो इसके अंदर हमारी इंटरवेंशन होंगी। तो इस अंदर में ये 2 नए एरियाज हैं। फेज वन ये था, फेज टू में सराय क्वार्टर्स और ये हेल्थ एनक्लेव इसका नाम किया। सो दिस इज बेटर आई थिंक। सो ये सारा आई डोंट नो तुमने वो एरिया गए नहीं गए। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये पाकिस्तान चौक है और यहाँ से अगर आप अंदर जाओ तो ये जो एरिया है आगे जाके हक्कानी चौक आ जाता है, फिर ये चुंदरीगढ़ रोड आ जाती है। सो ये एरिया है, उसके आसपास का सारा एरिया, ठीक है ना, ये रेलवे ग्राउंड है ऑल। अच्छा, इसके अंदर ये सारे एरियाज आइडेंटिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी कि जहाँ पे हमें पब्लिक स्पेस। अब वही है कि डिफरेंट है, कहीं पे पार्क है, कहीं पे स्ट्रीट है, कहीं पे स्क्वायर है। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवेंशंस विल बी हैपनिंग देयर, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस कि अगर ये काम सही तरह हो तो इट कैन हैव अ मच लार्जर फुटप्रिंट क्रिएटेड। जैसे इसके आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट दिस पार्ट ऑफ इट। ये अगर तुम देख रहे हो जो लाइटेड आप हमने थोड़ा सा किया हुआ है येलो में, ये मीमन मस्जिद है और इधर से आप आ रहे हो तो ये डेंसो हॉल की तरफ से आप आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो 2 ट्रेल, ब्लू ट्रेल और रेड ट्रेल है। गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है इसको कि दिस हैज टू बी डिजाइंड एज अ पब्लिक स्पेस एंड एज फार एज पॉसिबल पेडेस्ट्रियनाइज। सो ये जो सारा नेटवर्क तुम्हें नजर आ रहा है दिस विल कम इन फेज 2 कि they will be as far as possible pedestrianized, नहीं तो as I mean public space design has to happen. So ये all the way up to KPT ना, डेंसो हॉल से लेके all the way up to KPT। जैसे ये हैं वो 2 ट्रेल्स, ये रेड ट्रेल है जो यहाँ डेंसो हॉल से स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे बोल्टन मार्केट, मेमन मस्जिद और फिर ये आपका कायद आजम का जो घर है वो वजीर मेंशन, और यहाँ से लेके जो है वो ये सब आगे जाके कस्टम हाउस तक आ रहा है। और फिर ये ब्लू ट्रेल है विच इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये यहाँ तक खारा दर, ये सॉरी जो आपकी कौन सा बाजार है वहाँ पे, सो ये यहाँ से होके आगे जाके ऊपर तक जाता है, ठीक है। सो ये 2 ट्रेल्स हैं जिसके बारे में आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि यहाँ पे अगर अच्छी तरह काम हो तो दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद कपरी ग्राउंड है, कपरी ग्राउंड लियारी में, उसका पूरा दोबारा से वो रेनोवेट होगा, दोबारा से चेंज होगा डिजाइन भी एंड एवरीथिंग। सो कपरी ग्राउंड को लिया गया है एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग, और इसका अभी बहुत ही एक बेसिक किस्म का एक कंसेप्चुअल डिजाइन अभी है। सो कपरी ग्राउंड इज गोइंग टू बी रीडन। अच्छा, उसके बाद ये आई डोंट नो इसमें से आई थिंक यू विल गेट एक्साइटेड अबाउट दिस। ये जो रोड है हमारी, ये बोट पे सॉरी शॉन सर्कल से स्टार्ट करके एंड ऑल द वे ये जो चलता है ना फूड स्ट्रीट चलती है, ये यहाँ से मोटा है यहाँ पे,
ये मोटा से आप आगे जाओ, ये स्ट्राइडिंग स्ट्रीट जो जा रही है ऑल द वे अप टू बोट बेसन, और इंटरनल स्ट्रीट भी इसकी यहाँ पे ये पूरी फूड स्ट्रीट दोबारा से रीडिजाइन होगी एज अ पब्लिक स्पेस। सो दिस कैन बी क्वाइट एक्साइटिंग फॉर यू। सारा ये शॉन सर्कल से लेके ऑल द वे अप टू ये बोट बेसन, और बोट बेसन के ये एंड तक ना, ये जहाँ तक जाता है। सो दिस इज ऑल्सो, फिर ये अंदर की स्ट्रीट्स को भी हम देख रहे हैं ताकि थोड़ा सा एक्सेस को हम, बिकॉज इट्स अ नेबरहुड थिंग ना, दिस इज लाइक अ नेबरहुड दैट वी हैव आइडेंटिफाइड। सो एक्सेस आसान हो जाए, पार्किंग के लिए स्पेसेस को हम देख रहे हैं। तो अभी तो खैर बिल्कुल स्टार्ट है, सो अभी नो डिजाइन हैज कम अप। सो दिस इज अनदर मेजर इंटरवेंशन दैट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, मलीर में जो है वो इट्स अ वेरी नेबरहुड काइंड ऑफ थिंग। मलीर के अंदर नेबरहुड क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए, 3 क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, और उसमें नेबरहुड लेवल पे डिजाइन है, पार्कलेट्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, स्मॉल पार्क्स हैं, बड़े स्केल के भी पार्क्स वहाँ पे नेबरहुड जो पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं। सो वो नेबरहुड लेवल की एक डायनामिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं सॉरी, ये तो वो है सदर वाला, गलत आ गया, ये वो हेल्थ एनक्लेव, सो ये डाउनटाउन वाला एरिया। तो ये वो हेल्थ एनक्लेव था जो मैंने कहा था, ये सिविल हॉस्पिटल है और ये सारा जो है ना मिनिस्टर रोड यहाँ तक आता है। अच्छा, ये जो है इट्स मोर मलिर रिलेटेड, कि मलिर के अंदर जो देख रहे हैं कि स्ट्रीट्स की है, पार्क्स की है, डेवलपमेंट है, नेबरहुड डेवलपमेंट है, ये थोड़े से नो इस तरह के वो ग्लैमराइज किस्म के होते हैं। होपफुली ऐसा बनेगा नहीं, बट ये कि दिस इज समथिंग यू नो। सो एंड देन ऑफ कोर्स स्ट्रीट्स की इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज स्ट्रीट्स का इस ओवरऑल किनेट प्रोजेक्ट में स्ट्रीट्स का एक मेजर कंपोनेंट है कि किस तरह आप स्ट्रीट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, and along with of course the walk pavement spaces and square spaces and everything. So ये मलिर का है सारा जो 3 क्लस्टर्स में होना है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ जो जिस पे कंक्लूड करूँगा वो ये है कि जो हमारे यहाँ प्लानिंग आइसोलेशन में होती है अनफॉर्चुनेटली, और ये मैं आखिरी स्लाइड में इसको कंक्लूड करूँगा इससे, कि यू डोंट कनेक्ट द डॉट्स ना, कि भाई फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक स्पेस तो बना दी, मगर एक्सेसिबिलिटी कहाँ से आएगी, पब्लिक स्पेसेस को हम किस तरह डिमार्केट करेंगे, नई पब्लिक स्पेसेस किस तरह रिक्लेम करेंगे। सो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट इस पूरे किनेट प्रोजेक्ट का है, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, वो पूरे डाउनटाउन की ये पार्किंग स्ट्रेटजी की डेवलपमेंट। सो दैट व्हेन यू आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ पार्किंग स्ट्रेटजी, तो एक तो एक्सेस को आप इंप्रूव कर रहे हो, और दूसरा व्हेन यू आर रिमूविंग द कार्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रीट, तो सडनली यू विल फाइंड so much space that is reclaimed that can be converted into a public space. So this is a very comprehensive parking strategy that is being developed for the whole of the downtown area. इसके अंदर सदर को different clusters में हमने divide कर दिया है, सारे clusters हैं इसके, और उसके बाद हर एक के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। हर प्राइमरी डेटा जनरेशन बहुत होगा इसका, और फिर शॉर्ट टर्म है कुछ सॉल्यूशंस इसके, और फिर लॉन्ग टर्म। इस शॉर्ट टर्म मोर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड ज़्यादा है, जैसे चार्जेस की, प्राइसिंग की मैकेनिज्म है, चार्जिंग है, फैसिलिटीज, पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं, के मैकेनिज्म हैं, साइनेज वगैरह, शटल वैली सर्विस, ये थोड़े से शॉर्ट टर्म है। और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो बड़े स्केल की पार्किंग स्पेसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एंड इसके अंदर, एंड दिस इज अ डिबेटेबल इशू। जाहिर है कि मैं आज एक चीज़ जो ये है कि मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को। आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ आई हैव एंगेज्ड विद दिस वर्क, एंड आई वुड लाइक, आई myself know कि this is an experiment and there are so many things that are happening right, so many things that could have happened better, ठीक है ना। so for example इसके अंदर एक जो अभी प्रपोजल है कि जो बड़े पार्क्स हैं उनके अंदर सब सरफेस हम पार्किंग क्रिएट करते हैं। हाउ गुड दैट आइडिया इज और नॉट। फॉर एग्जांपल आराम बाग पार्क है, इसके अंदर सब सरफेस 2 लेवल की पार्किंग का एक प्लान है। सिमिलरली बलोच पार्क है, शाहबुद्दीन मार्केट है जो एम्प्रेस मार्केट पे है, वहाँ पे है पार्किंग का, रेलवे ग्राउंड में पार्किंग का प्लान है। So how you can create, क्योंकि आप गाड़ियों को एकदम शहर से खत्म तो नहीं कर सकते, you need to have those kind of parking spaces created. Just for example ये जो है ये आराम बाग का है, पार्किंग का स्पेस है। अच्छा, I would like to now conclude now, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का, अब इसमें जो मेन जो अंडरस्टैंडिंग थी और जो इसके पीछे एक थिंकिंग थी वो ये थी कि किस तरह हम अपनी एक तो लॉस्ट पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम कर सकें, जिसके अंदर स्ट्रीट्स, जिसके अंदर मोहल्ले हैं, नेबरहुड्स हैं, किस तरह हम उनको रिक्लेम कर सकें और वहाँ पे दोबारा से एक ह्यूमन स्केल डेवलपमेंट हो सके। फिर डाउनटाउन इज़ अ वेरी मेजर एरिया वी आर फोकसिंग, क्योंकि जाहिर है कराची में रहने वाले हो तुम्हें सबको पता है कि जब हम कराची की हिस्टोरिक वैल्यू की बात करते हैं, हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं,
पब्लिक स्पेसेस की बात करते हैं, रिटेल स्पेसेस की बात करते हैं, इट्स ऑल सदर एज इज द डाउनटाउन एरिया एंड एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो उसके अंदर एक कोर फोकस है और वहाँ पे जाहिर है कि वी आर वर्किंग विद डिफरेंट टिपोलॉजीज एंड स्टेक होल्डर्स. बट ये एक चीज़ अभी भी जो प्रॉब्लम है और ये लर्निंग इस सारे प्रोजेक्ट में हुई है वो ये है कि प्राइमरी डेटा अवेलेबल नहीं. जिस टाइप का प्राइमरी डेटा हमें चाहिए हो, मैपिंग है, डेमोग्राफिक डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है, वो अवेलेबल नहीं है. और ये कराची का एक बहुत बड़ा डायलेमा है. सो एक एक्सरसाइज जो भी वर्ल्ड बैंक करने वाला है वो बड़े स्केल पे कराची में प्राइमरी डेटा की जनरेशन. So, and this basically affects every planning or policy making process that happens in Karachi because we just do not have that kind of database available to make this planning really benefits be optimized. I mean, एक शहर में जहाँ हमें यही नहीं पता कितने लोग रहते हैं तो फिर जाहिर बात आगे कैसे जाएगी. But we need to go there. Lack of this is very important for me. इसके अंदर अब hopefully phase 2 में अलग से एक काम हो रहा है, पैरेलल में एक काम हो रहा है. वो ये है कि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से हमने ये पीपल स्क्वायर बना लिया, हमने जो है वो कुरंगी में कोई रोड बना लिया, हमने इब्राहिम हैजी में काम कर लिया, इट्स इन आइसोलेशन. दे आर नॉट पार्ट ऑफ अ लार्जर विजन फॉर कराची, फॉर पब्लिक स्पेस डिजाइन, फॉर पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फ्रेमवर्क है. दे आर जस्ट हैपनिंग स्टिल इन आइसोलेशन. सो एक सेकंड फेज में जो काम है, एंड व्हेन यू हैव दीज प्रोजेक्ट्स स्टैंडिंग इन आइसोलेशन, देन there is a very great chance that they will fall. They will ultimately crash because they are not fitting into a larger script. ठीक है ना, for the overall planning and vision and strategy for the city. So एक जो काम अब next phase में हम सोच रहे हैं कि पूरा vision develop करें downtown area का, at least downtown area का public space का एक पूरा vision document develop करें. And it has to be, and it will be उसका basic terms of reference जो सारा draft मैंने बनाया, it has to be a very inclusive process, you know, where you engage all the stakeholders for thinking about a new strategy for your downtown area. फिर काउंटर प्रोडक्टिव पब्लिक पॉलिसी है कि एक तो हम तरफ जो है वो हम हाई डेंसिटी हाउसिंग क्रिएट कर रहे हैं, सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, गाड़ियां लेके आ रहे हैं, यू नो, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं पब्लिक स्पेस हम क्रिएट करेंगे. सो those kind of, you know, counterproductive policies that are leading to area being encroached upon or being taken up or eaten up within the city are happening parallel to what हम चाह रहे हैं. तो ये कराची का एक बड़ा डिसफंक्शनैलिटी है कराची. फिर गवर्नेंस का आर्किटेक्चर जो इस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह हमें एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह डिफरेंट इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है. एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की नहीं सुनता है, हम एक के पास जाएंगे दूसरा काम नहीं कर रहा है, एक ने सड़क बनाई दूसरा खोदते चला गया. सो जो ओवरऑल डिसफंक्शनल एक गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है कराची का, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट यू हैव टू समहाउ सर्कमवेंट. एंड द लिमिटेड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के हमारे यहाँ अभी भी टॉप हैवी प्लानिंग हो रही है, टॉप डाउन प्लानिंग हो रही है, ग्रास रूट बॉटम्स अप और डिमांड ड्रिवन प्लानिंग नहीं हो रही. डिमांड और दैट कैन ओनली हैपन इफ यू फाइंड वेज ऑफ एंगेजिंग पीपल in that kind of a process. And this is the last slide. और ये मैं तुमसे शेयर भी कर लूँगा जैसिका सुमेला से कि ये अगर तुम लोग डाउनलोड कर लो बुक तो इट्स रियली वेरी गुड. इट्स आई थिंक अ ग्राउंड ब्रेकिंग बुक इन पब्लिक स्पेस डिजाइन. इसके ऊपर जो कराची का चैप्टर है वो मैंने किया है. मैं इसलिए तुमसे कह रहा कि तुम डाउनलोड कर लो क्योंकि मैंने कराची का चैप्टर लिखा है. बट इट विल रियली एड टू योर नॉलेज बेस. आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. If you are interested in public space design, want to do something in your future, please go through this book in detail. So that was my presentation. Thank you so much, Rahanzad. We have time, so if anyone has any questions, feel free to type them in. We have one question. Ahmed has asked, will anything be done on Nere Khayyam? Do you know anything about that? Nere Khayyam is not part of this Kinnick project. The information that I have is, of course, a team of architects, Shahid Abdullah Saab and all, they have prepared an overall design for Nere Khayyam's improvement. In fact, just before the Corona came, they had this opening ceremony also there. You know, they launched their project, and apparently the Sindh government had also approved it. But where it stands now, I don't know. Someone has raised their hand, but you can just type in the question in the Q&A section. Oh, Arshad Saab, I think, has a question. Arshad Saab, would you like to talk? You're on mute. Can you hear me now? Yes. I can hear you. Yeah. Assalamu alaikum, Farhan.
Great presentation. Yes, sir. No, I just wanted to update Nair Khayyam ka that we were all involved. There were about 30 architects were involved in doing that, and वही होता है because it was not just it wasn't coming under one authority. There was water board अलग था और KDA and KMCA and Clifton and all those things. So वो आपस में it never happened. The proposal was approved by the Sim government and like Farhan said, कि launch हो गई थी. But due to all these different authorities involved, it never took off. So I hope it ho jaye because drawings have been made, all the details have been done, and financially we were all planning to kind of go for the fundraising, but somehow it never happened. Yeah, that's what I. How long has this been, Arshad Saab? Like it's been on hold for how long? Well, we've been working on it for the past 5 years. We've been working on it, and it's the whole belt has been divided into small portions, and each architectural firm was given one portion, and then we had this whole model in which we all kind of put our pieces together and how they all came together. So and we used to have meetings every Tuesday or Wednesday at Building Center, जो था Shara Faisal पे, and the whole model was made. But like I said कि वो फिर 2-3 दफा होता है कि अच्छा शुरू हो रहा है फिर सबको जोश चढ़ जाता है तो अब we don't know what's the future of that. Okay. There's a question about People Square, I think. Oh yeah, we have one question. Yeah, two things. One to ये कि it hasn't been totally opened. Because the main attraction supposed to be there are the food kiosks and everything. So they were to be outsourced to a private company, private company. So that has now happened. So hopefully, it will be opened in that way now. And the बाकी barriers I can also confirm from them कि अगर इस किस्म का भी है या नहीं है. Because on and off वहाँ पे security issues तो होते हैं. Because it's that kind of high security area. But I can update myself if there are those kind of areas that are restricting public access. We have another question. Says, thank you for your presentation. Just wanted to ask, who are the people that are currently working on these projects, and are any student bodies involved, and can they be a part of these programs? Well, student bodies can definitely be involved. As far as the phase 1 is concerned, it was engineering consultant later on that did most of the design, and engineering associates. Engineering associate did it for Malid and Kurambi, and for the downtown area it was engineering consultants. And for the next phase, I think they have selected a consultant. I'm not sure who they are because we recently worked on the process. But a consultant I think has been identified for the phase 2 projects. And as far as student bodies are concerned, yes, definitely, if Indus Valley wants to be engaged, I can connect with the project director and everything, and students can do internship there also. So that's not a problem. But they're open to that. Okay, great. Any other particularly questions? With the phase 2 starting, so I think it will be a very good time if someone wants kind of embed themselves in this process. All right, I think that is it. We do not have any other questions. Farhan Saab, thank you so much. This was a great kickoff, a little late in the semester, but nonetheless a good kickoff. And then we have more faculty speaker series coming up in the next couple months, so that would be great. And Farhan Saab is always available and very, very responsive via email. So if you guys do have any questions about this or anything related to this, then please reach out to him. Yeah, and get this book out. It's for download the book. Oh, we have one new. Okay. Thank you. Thank you, everybody. Take care. Thank you.